ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو پتا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں گزشتہ روز وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہفتے کی رات کو وینٹیلیٹرز نہ ہونے کی وجہ سے 7 مریض جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے جن کو آکسیجن نہیں ملا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعداد تقریباً 18 سے 20 بھی ہو سکتی تھی اگر ہمارے وہاں پہ جو ہیلتھ ورکرز کا سٹاف ہے جنہوں نے بہت بخوبی اچھے طریقے سے کام کیا اور انہوں نے ایک بہت بڑے جس کو میں کہہ سکتی ہوں ڈیزاسٹر ہونے سے بچا لیا, جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2 ڈاکٹرز شامل ہیں اور ایک مین نرس بھی شفاعت اس میں شامل ہے. جی جناب, ہوا یہ کہ جب آکسیجن سپلائی کلیپس ہوئی اسپتال کی تو اس وقت کچھ ڈاکٹرز فوری طور پہ انہوں نے اپنے وہ ہاسٹل سے نکلے اور ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایمرجنسی سے اٹھ کے وارڈ سے اٹھ کے ہاسٹل گئے اور ڈاکٹرز کو لے کے آئے اور اس کے بعد جتنے بھی ایمرجنسی کے طور پہ وہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. جہاں جہاں پہ سٹینڈ بائی اور ایمرجنسی سلنڈرز موجود تھے انہوں نے وہ استعمال کروائے اور وہ ڈیتھ ٹول جو خدا نہ خواستہ 30-35 دستیوں میں ہو سکتا تھا, انہوں نے اس کو بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا لی, بہت سارے لوگوں کو ٹائملی شفٹ کر دیا گیا. کیونکہ اس وقت وارڈ میں شفاعت تقریباً کوئی 90 افراد ایسے تھے جو کہ زیر علاج تھے جنہیں مختلف سطح پر آکسیجن بھی دی جا رہی تھی اور ان حالات میں ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ. ڈاکٹر محمد سجاد, ڈاکٹر ذیشان افضل اور جو مین نرس وقار خان نے ان مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے ماہرانہ طور پر آکسیجن فراہم کی اور ایمرجنسی میں پہنچایا اور اس وقت طبی امداد سے کئی لوگوں کی جانیں بچ گئی. یہ جو طریقہ کار ہے آرٹیفیشلی ان کو سانس دینے کا, یہ ایک بڑا مشکل کام ہے جس میں ہاتھ سے ایک پمپ چلانا پڑتا ہے, جیسے مینول سارٹ آف وینٹیلیٹر جس کو ایمبیو بیگ کہتے ہیں. انہوں نے اسی طریقے سے لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے جو کرٹیکل تھے اور آکسیجن کی سپلائی ختم ہونے کی صورت میں انتقال کر سکتے تھے, انہوں نے ان کی جانیں بچائی. کتنا کیوس تھا وہاں پر. اور یہ ہمارے 3 ہیروز اگر ہم ان کی بات نہ کریں اور ان کا ذکر نہ کریں, کو شمار نہیں کریں گی تو وہ بالکل ڈاکٹر شازیہ جو وہ مطلب سر فہرست ہیں, یہ وہ تمام لوگ جنہوں نے لوگوں کی جانیں بچائی. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں سے 2 ہیروز جن میں ایک میل نرس وقار ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ میں ڈاکٹر ذیشان ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کے, ان کو ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ وقار آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آئی ایم شیور وہ بہت دردناک مناظر تھے جب وہاں پہ آپ کے جو پیشنٹس ان کو آکسیجن نہیں مل رہا تھا, ایگزیکٹلی اس وقت کیا سچویشن تھی اور آپ لوگوں نے اپنی نروس کو کیسے کنٹرول رکھتے ہوئے باقیوں کی ہیلپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, یہاں پہ آنے کا موقع ملا ہمیں. میرا نام ڈاکٹر ذیشان افضل ہے اور میں ریزیڈنٹ سرجن کام کر رہا ہوں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں اپنی سرجیکل یونٹ میں. ایکچولی یہ سینیریو اس طرح ڈیولپ ہوئی تھی کہ تقریباً 12-15 کو ایک دم آکسیجن کی جو ہماری سپلائی تھی آئسولیشن چیمبر میں اور اس کے علاوہ ہماری آئی سی یوز جو ہے سرجیکل آئی سی یوز, میڈیکل آئی سی یوز اور اس کے علاوہ ہماری جو انٹینسیو کیئر یونٹس ہیں وہاں پہ آکسیجن کی سپلائی ایک دم جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. تو ہمارے ساتھ جتنے بھی آئسولیشن میں پیشنٹ ایڈمٹ تھے تقریباً 90 سے زیادہ ہمارے ساتھ پیشنٹ تھے اس ٹائم, تو وہ سارے جتنے بھی پیشنٹ تھے وہ آکسیجن ڈیپینڈنٹ تھے کیونکہ وہ کووڈ پازیٹیو پیشنٹ تھے, آکسیجن ڈیپینڈنٹ تھے. تو اسی سینیریو میں جب ان کو آکسیجن کی سپلائی ختم ہو گئی, بند ہو گئی, تو یہ ایک بہت پینک سچویشن تھا. تو پھر ہمارے ساتھ جو ہاسپٹل میں اسی ٹائم کوئی الٹرنیٹ آپشن موجود نہیں تھا سوائے آکسیجن سائلنڈر کے جو کہ بیسمنٹ میں پڑے تھے سارے. تو اسی دوران جب یہ سچویشن کریٹ ہو گیا تو ہمارے ساتھ آئسولیشن میں جو جتنے بھی پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹ تھے اس نے دوڑ کے جو ہے نا وہ آکسیجن سلنڈر جو ہے نا اپنی پیشنٹ کے لیے جو ہے نا وہ ارینج کرنا خود شروع کی اور اسی دوران جو ہے نا وہ کافی پینک سچویشن تھا. لیکن میں کریڈٹ دیتا ہوں اپنے جو ہمارے ینگ ڈاکٹرس تھے اسی ٹائم, ہمارے جو نرسنگ سٹاف تھے سارے, پیرامیڈیکل سٹاف اور خاص طور پر ہماری سیکیورٹی گارڈز اور جو ہمارے ساتھ ہاسپٹل میں سویپرز حضرات تھے, تو ان لوگوں نے بہت کافی ہیلپ کی آکسیجن کی سپلائی میں. اور اس کے علاوہ جو تقریباً 19 پیشنٹ جو تھے وہ وقار بھائی اسی ٹائم کیجویلٹی میں ڈیوٹی پہ تھے, ہمارے ساتھ ڈاکٹر ساجد بھی تھے اور اسی ٹائم میں بھی, حالانکہ ہماری ڈیوٹی نہیں تھی آئسولیشن میں لیکن اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا ہم لوگ آ گئے وداؤٹ پی پیز. ہم نے آئسولیشن کے اندر جا کے جتنے بھی ہمارے ساتھ کریٹیکل پیشنٹ تھے تو جس اسپاٹ پہ آکسیجن
सप्लाई मिल रही थी हमें हॉस्पिटल में, एंड जहाँ पे हमारे साथ कैजुअल्टी है वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई फिर भी थी, तो हमने तकरीबन 19 क्रिटिकल पेशेंट को आइसोलेशन चैम्बर से वहाँ पे शिफ्ट किया। और जब हमारे साथ दोबारा ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर हो गई तो उसके बाद दोबारा हम लोगों ने साइलेंडर और मुझे बताइएगा डॉक्टर ज़ीशान, अगर खुदा ना खास्ता अगर ये बर वक्त एक्शन ना लिया जाता और ये इमरजेंसी सिलेंडर्स जो कि बेसमेंट में पड़े हुए थे, होना तो ये चाहिए कि ये भी वार्ड में ही मौजूद हो, अगर ये सिलेंडर्स वक्त पे इस्तेमाल ना किए जा सकते तो कितना नुकसान हो सकता था? एक्चुअली व्हाट आई वाज प्रेडिक्टिंग इन द इनिशियल स्टार्ट, मुझे जितना अंदाजा था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर देन 50 डेथ्स, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर आपको तो पता है बंदा 5-10 सेकंड तक जो है ना वो जिंदा नहीं रह सकता। और जब आप ऐसी पैनिक सिचुएशन में हो, ऐसी बीमारी में हो जो आप कंप्लीटली ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट हो, तो ऑब्वियस बात है मतलब पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये एक मेरे साथ मैं खुद समझता हूँ ये एक मौजिज़ा था, अल्लाह ताला की जो है ना मेहरबानी थी हम लोगों पे कि अल्लाह ताला ने बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट को उसी दिन वरना जैसे आप बता रहे हैं कि 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो उनकी वजह से वो जहाँ बहक हो सकते थे। अच्छा वक़ार, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप ये बताइएगा कि उस वक्त एग्जैक्टली कितना मुश्किल था, क्योंकि देखिए जब एक पैनिक क्रिएट हो जाता है और कोरोना तो सबसे ना सिर्फ आपकी बॉडी पे बल्कि आपके साइकोलॉजिकली आप पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अटैक करता है, तो कितना मुश्किल था उन तमाम चीज़ों को भी मैनेज करना, क्योंकि आप लोग बहुत कम लोग थे और मरीज़ बहुत ज़्यादा थे इस वक्त? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वक़ारुल्लाह चार्ज नर्स हूँ कि कैजुअल्टी में एक्सीडेंट इमरजेंसी जो है हमारे KTH में। मैं उस वक़्त ड्यूटी पे था और जो हालात थे उस वक़्त जो मैं देख रहा था, जो पहले शोर और ज़ोर से लोग चिल्लाते थे, तो मैं ख़ुद चला गया उधर। मैं आइसोलेशन में जब दाखिल हुआ तो मरीज़ कुछ अजीब हालात में पड़े थे, तो उस वक़्त मैंने एक क्रिटिकल डिसीजन ख़ुद लिया और अपनी रिस्पांसिबिलिटी पे मैंने ये पेशेंट शिफ्ट किए इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी में जब हमने पेशेंट शिफ्ट किए तो मैंने अपने जो नाइट सुपरवाइज़र थी मैंने उसको इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ इस तरह हालात आए हैं और आप लोग आपकी ड्यूटी नहीं थी आइसोलेशन वार्ड में, आपकी ड्यूटी आइसोलेशन वार्ड से बाहर थी और तमाम सूरत हाल को देखकर आप खुद अंदर आए? जी, मैंने देखा मेरे ड्यूटी कैजुअल्टी में थी, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उधर ही थी। मैंने ऐसे ही हालात को देखकर मैं गया कि क्या मसला है। मैंने एक चाचा को भेजा तो उसने मुझे बताया कि ऑक्सीजन ख़त्म हुआ है, तो फिर मैं खुद चला गया। मुझे ऑक्सीजन, मैंने सोचा कि उधर तो पेशेंट सिर्फ ऑक्सीजन के लिए ही आते हैं। तो जब मैंने हालात को देखा तो मैंने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म किया, उसने डायरेक्टर से रब्ता करके उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक मुख्तलिफ जो हमारे हॉस्टल में नर्सेज थे, उसकी ड्यूटी नहीं थी उन सब की, जो नियर मेल नर्सेज थे जो हॉस्टल्स में रहते थे, उन सबको बुलाया उस वक्त और मैंने ये पेशेंट शिफ्ट किया अपनी रिस्पांसिबिलिटी पे। बहुत और एम्बो बैगिंग और इन चीज़ों से हमने ये ज़रा बताइए, एम्बो बैगिंग जो आपने की, ये जो हाथ से पंप चलाया जाता है और लोगों की सांसें रिस्टोर की जाती हैं, बड़ा मेहनत तलब काम है और जाहिर है ये एक आध दफ़ा या 5-10 मिनट का काम नहीं है, मुसलसल 2-3 घंटे बैठना पड़ता है एक पेशेंट के पास। कितने लोगों ने एम्ब्यू बैगिंग की और कितने एम्ब्यू बैग्स मौजूद थे? ऑलमोस्ट ये तो हर वार्ड में तकरीबन 3-4 एम्बो बैग मौजूद होते हैं, तो अगर हम इस तरह सोच ले तो बहुत ज़्यादा बनते हैं 60+। लेकिन इसमें पेशेंट मुख्तलिफ वार्डों में शिफ्ट हुए। जिस तरह मेरा एक हमारा जो ICU का मैं बताऊंगा हीरो इसको, माजिद साहब, उसने अपने बिहाफ पे पेशेंट ICU शिफ्ट किए थे, तो वो भी एम्बोबैग पे शिफ्ट करके उधर फिर एम्बोबैगिंग करता था उसको। इसमें कुछ पेशेंट इस तरह थे कि वो बाईपेप सीपेप जो विंड के पेशेंट थे, वेंटिलेटर पे जो होते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर जिसको कहते हैं, उसको हमने फिर इमरजेंसी में जो ऑक्सीजन मौजूद था उसको हमने खुद सिलेंडर लेके आए। मतलब डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे चाचा सिक्योरिटी में मतलब आप लोगों की हिम्मत में जब एक सवाल का आप लोगों की हिम्मत और आप लोगों के हौसले को सलाम। मैं जरा डॉक्टर ज़ीशान साहब आपके पास भी आना चाहूँगी, क्योंकि जो हम अपने मुल्क में देख रहे हैं कोरोना के हवाले से वाक़यात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपको इसके अलावा लगता है चलें ठीक है एक बहुत बड़ा सानिया होने से बच गया, गो के 7 कीमती जानें चली गई, लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी गुंजाइश है कि अगर कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते चले गए तो हम डील कर पाएंगे सिचुएशन से? ये तो हुकूमत की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि मतलब हमारी जो आम लोग हैं वो SOPs का ख्याल नहीं रख रहे हैं। एक्चुअली जो इनिशियल वेव आया था उसमें हम लोगों ने काफ़ी कंट्रोल किया था, हमारे आवाम ने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन की थी, जितने भी SOPs है उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था। लेकिन अभी जो जिस तरह की सिचुएशंस है हमारी कंट्री में, हमारे जो मुल्क में जो जलसे वगैरह हो रही है और इसकी वजह से ना कोई SOPs फॉलो कर रहे हैं, ना मास्क का कोई इस्तेमाल कर रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग है हमारा,
तो अगर खुदा न खास्ता अगर ये सिचुएशन इस तरह बरकरार रही तो फिर बहुत मुश्किल होगा इस तरह की डॉक्टर ज़ीशान, आप लोग बिलाशुबा हमारे हीरोज हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ जाननी है, जैसे अभी वकार भी बता रहे थे कि वो कैजुअलिटी में थे और वार्ड से उन्होंने लोगों की आवाज़ सुनी, अच्छा खासा फासला है मैं कैजुअलिटी और जो KTH की जो एमरजेंसी है, फिर आप लोग हॉस्टल्स में थे, आप लोग हॉस्टल से आपके यंग डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ जो है नर्सिंग स्टाफ वो पहुंचा, अच्छा खासा फासला है वो भी, कितना वक्त लगा जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई और जितनी देर में डॉक्टर्स वहां पहुंचे, कितनी देर में पहुंच गए थे? ये सिचुएशन जब क्रिएट हो गया तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स थे और हमारे स्टाफ वाले पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, वो तो ज़्यादातर लोग हॉस्टल में थे क्योंकि संडे की नाइट थी और संडे को तो वैसे भी छुट्टी होती है नॉर्मली, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स की तो खैर छुट्टी नहीं होती क्योंकि वो लोग अक्सर इमरजेंसी टाइम पे ऑन ड्यूटी ऑन कॉल होते हैं। लेकिन जब हमें पता चल गया उसी टाइम तो हम लोग हॉस्टल से आए, मैं तो खुद कैजुअल्टी में एज अ सर्जिकल यूनिट का मैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था वहाँ पे। तो जब हमें पता चला तो हम लोग डायरेक्टली आइसोलेशन चेंबर आए और जब हम आइसोलेशन चेंबर के अंदर जाते हैं, आप लोगों को पता है हम प्रॉपर PPEs यूज़ करते हैं, प्रॉपर किट हमारी होती है, N95 मास्क हम यूज़ करते हैं क्योंकि इस तरह हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन वो इतना पैनिक सिचुएशन था कि हमारे साथ जितने भी डॉक्टर्स थे वो डायरेक्टली मैं खुद विदाउट PPEs अंदर गया क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह की सिचुएशन में फिर आप इतना वेट नहीं कर सकते थे। तो हमने रिस्क लिया अपने आप पे और अंदर चले गए और जितने भी वहाँ पे पेशेंट थे तो उनको हम लोगों ने ये डॉक्टर साहब बिलाशुबा आपकी खिदमत जो है, जी जी बिल्कुल, प्लीज इसको समझ कर दीजिए। हाँ, हमारे साथ जो हमारी जितने भी आइसोलेशन में उसी टाइम हमारी जितनी भी डॉक्टर्स की ड्यूटी थी, पैरामेडिकल स्टाफ की और नर्सिंग स्टाफ की, हमारे सब ने कंबाइन एफर्ट किया था उसी रात। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे साथ जो हॉस्पिटल्स की स्वीपर्स है उन लोगों ने भी जो है ना पेशेंट के लिए उसके लिए सिलेंडर खुद लेके आ रहे थे, हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स वो सारे लगे रहे थे उसी रात। तो यकीनन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे, सलीस वक़ार हमारे साथ मौजूद थे और ये वो हीरोज़ है शफात जैसे बात कर रहे थे ना कि हमने PPEs भी नहीं पहने, मतलब ये भी खौफ होता है ना कि कहीं हमें कोरोना न लग जाए, लेकिन उन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए ये भागे अंदर उन्होंने काम किया और उन्होंने बहुत कीमती जाने बचाई, इनको हमारी तरफ से सलाम। और वो नुकसान जो दसियों में हो सकता था, खुद डॉक्टर्स का अंदाजा था कि 50+ लोग इसमें जहाँ भाग हो सकते हैं, इन लोगों के इन टाइम एक्शन की बदौलत, इन KTH के हीरोज की बदौलत वो बड़ा नुकसान होने से बच गया। जो साथ जाने गई उनका अफसोस है, वो उनका ज़ाला भी मुमकिन नहीं है, लेकिन जो बच गए वो बहरहाल हमारे लिए उतने ही कीमती हैं जितना कोई और।